Ladies and gentlemen, Pakistan is imploding from within, slipping into chaos and confusion amid fears of an impending attack from India. But even before a single bullet is fired, Pakistan is already teetering on the edge. Their own police is showing the mirror to Pakistan Army. In a viral video, Pashtun police is seen mocking, jeering and abusing the Pakistan soldiers, even threatening to boot out the Army General Asim Munir. They say, हम आपके आर्मी चीफ को रखते हैं जूते की नोक पर. Watch how Pakistan Army is the butt of jokes even by Pakistan police. दिमाग खराब है आपका. उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो. कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो. जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं. बकवास करते हो. And their anger is justified. As we told you earlier, Asim Munir, for the last 10 days, was not to be seen. He deserted the front lines and went missing after the Pahalgam terror attack, but finally showed up after 10 days. But make no mistake, anger within Pakistan is bubbling like lava in a volcano. India's move to put the Indus Water Treaty in abeyance is starting to hurt. Watch these protests in Sindh, with locals threatening to disrupt railway movement and block power supply in the area. Of course, the Pakistan Army has crushed them with an iron fist. Even their own human rights report exposes their brutal face. There have been 379 cases of disappearances, 341 encounter deaths, over 400 honor killings, 162 attacks on journalists and murder of 6 journalists for the failed state of Pakistan. It is the worst enemy for itself, not really India. That really is what's coming out of the media and the social media in Pakistan. Joining me on this debate, Gaurav Bhatia continues to be with us. Also joining him, Major Gaurav Arya, defense analyst, Dr. Saeed Elahi, leader of the PMLN and former minister, Pakistan's Punjab province. Also joining me tonight is Raja Anis, journalist. And Raja Anis, my question to you first. Pardon me, Dr. Atikur Rahman, professor of international relations, also joining the debate. Raja Anis, I want to ask you, finally the Pakistan Army chief has surfaced with a 4-star tank to accompany him. Is this a moment for him to show his position, or is it a moment for him to really sort out the confidence issues that the Pakistani army is having and people in Pakistan are having, considering that he's been missing in action for the last 10 days? Are you asking me? Yes, if your name is Raja Anis, my question is to you. Yes, sir. Can you please ask me in Urdu, please? Or can you repeat the question once again, because your voice is coming very slow. मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके आर्मी चीफ तो मिल गए हैं, लेकिन पश्तून की पुलिस जो कह रही है आर्मी चीफ को, उससे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है पाकिस्तान में? I think we have a bad connection. Dr. Atikur Rahman, that question goes to you. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने ये वीडियो दिखाई, मुझे नहीं पता आपको ये कहां से पहुंची, किसने बनाई और किस तरफ से आप वीडियो ये लेके आए हैं. इसकी क्रेडिबिलिटी मुझे वीडियो की नहीं पता, और मैं आपके प्रोग्राम में ये देख रहा हूं. और दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि जो एक्चुअल इशू है, हमें उस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए. जो कि आप लोगों ने जो है वो ये एक मैनिपुलेटेड एक इंसिडेंट किया, इसके बाद एक पूरा एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा चलाया और इसको फिर पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की. तो मेरा ख्याल है एक्चुअल इशू पे अगर हम बात कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आप लोगों की तरफ से कोई इतना ना कोई क्रेडिबल प्रूफ सामने आया, ना दुनिया के सामने आपने कोई क्रेडिबिलिटी दिखाई है. बस एक इंसिडेंट आपने करवाया और उसके फौरन आपने जो है पाकिस्तान पे डाला, और अब उसको आप जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन आप अगर इंसिडेंट हमने करवाया तो घबराए हुए आप क्यों नजर आ रहे हैं? कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ अस्पताल में होते हैं, कभी ख्वाजा आसिफ के अल्लाह को याद कर रहे होते हैं. अगर हमने कराया तो आप डरे क्यों घूम रहे हैं? आसिफ मुनीर छुपे हुए क्यों हैं? मेजर गौरव आर्या,
इन्हें गौरव आर्या को आपने बना लिया है, दैट इज द बेसिकली योर बिग फेस ऑफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, जनाब आप अपना मीडिया, अपना पाकिस्तान का सोशल मीडिया देख लीजिए। शायद आप शायद आप देख नहीं पा रहे, वहां बिजली आती है कि नहीं मुझे पता नहीं, वाईफाई है कि नहीं पता नहीं मुझे, पर आप जरा देख लीजिए। मेजर गौरव आर्या, इन्हें जरा बता दीजिए कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये कौन कर रहा है और कैसे। देखिए, दो चीजें हैं। नाविका, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, आपने शो पे इनवाइट करा मुझे। दो तीन बातें हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया ने खुद करवा दिया। अगर इंडिया ने खुद करवा दिया तो फिर पाकिस्तान को ये बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग न्यूट्रल पार्टी से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। छोड़िए ना, इंडिया ने खुद करवा दिया, तुम्हारी को क्या फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, अमेरिका, सर आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी सर। मैं बड़े इज्जत से आपसे बोल रहा हूं, मैं चुप हो जाऊंगा फिर आप बोल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, दूसरी चीज ये है कि अमेरिका से अभी बयान आया है कि भाई आप कंडेम करिए। अमेरिका ने फॉर्मली बोला है पाकिस्तान की सरकार को कि आप कंडेम करिए पहलगाम, वरना मामला हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान शुड जस्ट टेल द अमेरिकन्स कि कंडेम करने वाली क्या बात है, ये तो फॉल्स फ्लैग है, ये तो इंडिया ने करवाया है। यही फॉल्स फ्लैग की कहानी इन्होंने 26/11 को भी सुनाई थी। तब इनके शायद सबसे बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर कैमरा लेकर गए थे और बोला था ये जो सामने घर दिख रहा है ना, ये अजमल कसाब का है, मैं उसको जानता हूं। यहां यही बात जब पठानकोट पे अटैक हुआ था, भारत ने बोला पाकिस्तान ने करा है, तो पाकिस्तानियों ने बोला नहीं, ये तो भारत ने फॉल्स फ्लैग करा है, ये तो अपने ऊपर अटैक किया। मोदी जी ने बोला आईएसआई की टीम भेजी है, आईएसआई की टीम भेजी गई, आईएसआई की टीम पठानकोट एयरबेस आई, हमने यहां तक करा। 26/11 में हमने सारे प्रूफ दिए आपकी कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट इन पाकिस्तान को हमने प्रूफ पेश करे। 2-3 साल के बाद कोर्ट ने बोला कि ये तो लिटरेचर है, ये तो बकवास है। अब इंसान क्या करे जब कोई मानने को तैयार ही नहीं। तो इस बार भारत ने फैसला करा कि हम किसी को सबूत नहीं देंगे, क्योंकि अब सबूत की कहानी हमने खत्म कर दी। क्योंकि देखिए, आप कुछ भी सबूत दीजिए, मैं आपको नाविका एक बात बताता हूं, और ये बड़ा फेमस केस है और मैं ट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, संजीदा बहस है, इसको संजीदा ही रखें हम लोग। हंसी मजाक का चीखना चिल्लाना ये मैं नहीं करूंगा आज। तो मैं एक संजीदा बात कहना चाहता हूं, और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। जब 1971 में जनरल नियाजी ने सरेंडर साइन करा, तो एक दिन पहले डॉन न्यूज का हेडलाइन थी कि वी विल फाइट टिल द एंड एंड विक्ट्री इज देयर, यानी कि जो जीत है वो बिल्कुल सामने है, हम फातिहा हैं, फतेह है, हम लोग जीतने वाले हैं, भारत को, काफिरों को मार देंगे, गिरा देंगे, ये सब। और उसके 24 घंटे के अंदर वो सरेंडर की डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन गौरव आर्या करता है, डिसइंफॉर्मेशन करता है। आपने जो बोला साहब, आपकी राय हो सकती है, मैं तो आपको रोक नहीं सकता कि आप अपनी राय मत बताइए, आप बता दीजिए जो आपके दिल में है। लेकिन मैं आपको ऐसे 5 और एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां पे पाकिस्तान ने खुलेआम डिसइंफॉर्मेशन कर। आप देखिए, आपके परमानेंट एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस एक फोटोग्राफ दिखाते हैं एक पैलेस्टीनियन लड़की की, और ये कहते हैं कि पैलेट गन मारा था कश्मीर पे, यूएन में हो रहा है, और गौरव आर्या डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादती हुई है मेरे साथ, आपने ज्यादती करी है सब। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, 2-3 पॉइंट्स हैं बड़े छोटे छोटे, 30 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा। पहली चीज तो ये है कि जो कश्मीर में हुआ वो बुरा हुआ। अगर पाकिस्तान सिर्फ ये कह देता कि लोग मारे गए हैं, अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिंपल सी बात है। ये नहीं कहता कि हाँ हमने कराया और हम ये करेंगे, बस अफसोस हुआ, लोग मारे गए। बात यह होती है कि जब किसी का दिल टूट रहा है, परिवार रो रहे हैं, उनकी लाशें वापस जा रही हैं, तब हंसते हुए पाकिस्तानी मिनिस्टर्स टेलीविजन पे कहते हैं कि भारत ने, देखिए साहब हमारी डेमोक्रेसी है, यहां पे किसी की औकात, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये वर्ड औकात इस्तेमाल कर रहा हूं, भारत के अंदर, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं इंडिया के लिए कह रहा हूं, यहां पे कोई गलत बयानी पब्लिक के सामने करे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसकी औकात नहीं है। यहां पे पब्लिक छील देगी खाल उसकी 2 मिनट के अंदर। कुछ समय के लिए छुप सकता है झूठ, कुछ समय के लिए। अगर हमारे गलवान में हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए चाइनीज फौजों से लड़के, एक एक का नाम अगले 12 घंटे मीडिया के पास था, शक्ल के साथ, फोटोग्राफ के साथ। चाइना की तरह नहीं था सर कि चाइना ने बोला कोई मरा ही नहीं, फिर 4 साल के बाद बोले 4 मरे, 2 साल के बाद बोले 8 मरे। ऐसा नहीं होता, भारत में ये स्कोप है नहीं। हाँ, हम में कई गलतियां हैं, हमारी डेमोक्रेसी अच्छी परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस।
हो सकता है हमारा मुल्क इतना परफेक्ट ना हो, जितना हम चाहते हैं वो बने, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बट ये कोई प्रधानमंत्री मोदी किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम, वो बोलेंगे भी नहीं, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो सकता कि तुम गलत बोलो, ये करो। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता भारत में। पेंशनें छिन जाएंगी, लोग घर चले जाएंगे, उनके तारे निकल जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जो आप कहते हैं ना डिसइंफॉर्मेशन, आपने मुझे बोल दिया, मैं तो ठीक है एक्स आर्मी ऑफिसर हूं, मैं बैठ के एज अ इंडिविजुअल मैं अपनी राय देता हूं, आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, ना पसंद आए आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सेना की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से अगर कुछ डिसइंफॉर्मेशन है, वो प्रूफ वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत ने प्रूफ नहीं दी, और उसका मैंने आपको रीजन बताया है। और साहब रीजन सिर्फ ये है कि हमने कई बार प्रूफ दिया, हमने बुलाया। आप एक बात बताइए साहब, अगर आपके क्वेटा एयरबेस पे अटैक हो, पेशावर एयरबेस पे अटैक हो, और आप बोलें कि भारत ने करवाया है, और भारत कहे नहीं, आप प्रूफ दिखाने के लिए रॉ को आने देंगे? आप रॉ की टीम को आने देंगे 3 दिन के लिए? साहब क्वेटा एयरबेस के अंदर हो, सोचिएगा आप जरा। नहीं, कभी नहीं आने देंगे। लेकिन आई ऑल्सो वांट टू गेट इन डॉक्टर सईद इलाही, my question to you is on the disinformation charge that is put. Disinformation was the only defense in 26/11, and then Ajmal Kasab was caught. We now have Tahavvur Rana, and it's not in India. All these depositions were made in the United States of America. David Headley, Tahavvur Rana, Ajmal Kasab, they left a print. But what did Pakistan first say? Oh, we have no hand. We have nothing to do. You said the same thing about Osama bin Laden. And then everybody knows, the world knows where he was found and where he was liquidated. Everybody knows. The United States of America and Obama's speech can be pulled out if you want to. And Pakistan saying that they have nothing to do with terrorism is the biggest joke. I want to ask you tonight, if India has not fired a bullet, why is Pakistan just so terrified? कभी अल्लाह को याद कर रहे हैं, कभी चाइना को. Thank you very much for inviting me to your show. I think it's a serious debate. First of all, you have mentioned few incidents in the past. So if we talk about past, the biggest evidence against India is Mr. Kulbhushan and his full gang of 300 people who were involved in terrorism in Pakistan. So that is past. So you are talking about the past, so I mentioned one incident, although there are many incidents like that. But I think, as Major Gaurav said, terrorism anywhere is bad, is lethal, is not good for humanity. So first of all, when he says that nobody is condemned, I think we all condemn the incidents of terrorism anywhere on the earth, not only in India, even in Pahalgam. If terrorists have killed innocent people, we never support them, we condemn them and criticize them. And this is number one thing. Number two is that Indian government and army and agencies should look into the matter, investigate properly, that people who are involved should be held responsible and punished. And if there is any witness against other people who are supporting, or maybe their cells or sleeper cells, they should be erased. And other thing is that Pakistan itself, as I told you before, is fighting against TTP and BLA on Afghanistan and Iran border. So this is the largest operation which Pakistan Army is conducting in two areas. And till now, thousands of terrorists have been killed because they are not only threat to Pakistan, they are threat to the whole world. Like there are not only one group, TTP, there are ISIS, Al-Jaish and different things. Dr. So Elahi, you abducted Kulbhushan Jadhav, kept him in illegal custody after abducting him, and you denied him consular access. Ultimately, you lost the case in the International Court of Justice. Only after India sued you, you had to lose the case for you to see the reality and the writing on the wall. And you're giving us lessons. Please look at your own country. It is on the cusp of, literally disintegrating into 4 parts. But Major Gaurav Arya, everybody has a lesson for India, none for themselves. I have very quickly 2 points. Number one, you mentioned Osama bin Laden. The problem is not that Osama bin Laden was found in Pakistan. That is not the issue which Indian media keeps on saying he was found. Of course he was found, but that is not the point.
The point is that Pakistanis were getting billions of dollars every year to find Osama bin Laden. So the Pakistanis were taking, that is what Trump tweeted about on his 1st of January, that iconic tweet. We can pull it out and put it here in front of everybody on the board. Tweet said that we have given Pakistan $32 billion and they have stabbed us in the back. So basically what has happened is when Pakistan hid Osama bin Laden, that itself was not the crime. The crime was that they were taking money to find Osama bin Laden by all the time, they were hiding him. That is number one. Number two, Dr. Elahi, sir, I apologize to you if I have taken a wrong name. I could read that name. So I think it's Dr. Elahi. Dr. Elahi Saab said that, they caught Kulbhushan. I have never understood till now. I have read all reports of Pakistani media. I have not understood what Kulbhushan's crime was. They say he was found with a fake passport. Right? No, sir. And so they sentenced him to death. और उनका इकबालिया बयान था. तो फौज का हमारी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है सर, जैसे जी सर मैं उस पे आ रहा हूँ सर, डॉक्टर साहब. सर ऐसा होता है कि किसी भी मुल्क में जब तक मैजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं होता है तब तक उसको पुलिस के, ये तो आर्मी की कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दिया है जाधव को. यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि साहब कुलभूषण जाधव का इकबालिया बयान. किस देश की बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या? कंसिडरिंग आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, आई विल ओनली सम अप. इनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ अपॉइंट कर देते हैं. द पॉपुलर मैन इज इन जेल, द नॉट सो पॉपुलर वन इज द प्राइम मिनिस्टर. बट दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स इन पाकिस्तान. द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वेल, I won't say in front of my Pakistani guests is a joke, but that's what the world says. And today, not just Asim Munir has surfaced, but also Shahbaz Sharif, who was in a hospital for the last few days, ran to the president, Zardari Sahab. Suddenly, is everybody worried? कोई अल्लाह को याद कर रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब कोई प्रेसिडेंट से मिल रहा है, हर तरफ एक्सरसाइजेस हो रही हैं. वेल, दे आर सेइंग 24 आवर्स, 36 आवर्स. इंडिया हैजंट इवन लुक्ड देयर वे. इतना डर क्यों? व्हाई आर दे सो स्केयर्ड? दैट्स द क्वेश्चन इंडिया इज आस्किंग. Thanking all my panelists joining me on the News Hour tonight, and thank you viewers for staying with me. Good night, be safe. I'll be back tomorrow.